हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो प्यारे बच्चों? मजे में ना? चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने मिरर के बारे में समझाया। देन आफ्टर मिरर के लिए टर्मिनोलॉजी समझाई, कौन सी मिरर क्या होता है वो, देन फोकल पॉइंट, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब बहुत सारे जो आप लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके। देन आफ्टर एक और बात समझाई, R इज इक्वल टू 2F वाला। देन आफ्टर मिरर फॉर्मूला समझाई। देन आफ्टर क्या समझाया उसके बाद में बच्चों? उसके बाद में आया था कि अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखा है तो इमेज कैसे फॉर्म होता है, वो सब बातें जो आपको कहां पर, जो आपको सम्स में ज्यादा यूज करना पड़ता है वो, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के लिए साइन कन्वेंशंस बताया था। राइट नाउ we are moving on to the next physical phenomenon that is related to the ray optics, and it is called the refraction of the light. Reflection क्या था बताया था, as the light ray is incident on some shining surface, then it is back in the same medium, in the same plane, then it is called the reflection of the light. Now the second thing is that, दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात प्यारे बच्चों ये है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है? इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन सम सरफेस बट बोथ द मीडियम्स आर ट्रांसपेरेंट, then what happened? The surface may be a shining or not, it doesn't matter, but the thing is that the lower medium is also the transparent. Then if light rays is incident here, then it move into the next medium, but the path gets deviated from this interface between the two mediums, then this physical phenomenon is known as the refraction of the light. Just we see with the help of the diagram. See, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम में, वो समझा देते हैं। राइट, now see my dear students, this is the surface which is separating the two medium. The surface is called AB. On upper side of the AB, you can say that here is the medium 1, and here this one is medium 2. This one is optically denser medium and this one is optically rarer medium. Right? Now if I draw a normal here like this normal is called MQN. This MQN is normal onto the surface AB. Right? Now see, if this light ray is incident like this, not perpendicular, it is little bit inclined like this, then this ray is called PQ, and this is nothing but the incident ray. This is nothing but the incident ray. Then after, this angle is called the angle of incidence, and this is called I. What is I? Angle of incidence. Then after at this point Q, what happened? The ray is moving from optically rarer medium to the optically denser medium, then it moved towards this normal like this, and this angle is called the R. Then the bending of this light is known as the, you can say this bending of the light is called the, you can say refraction of the light rays. This is the R. अगर ये रे ऐसे आ रहा है तो यहां से ही बैंड होगा, और यही फिजिकल फिनोमेना को हम लोग नाम दे सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज. सो व्हाट कैन वी, हाउ कैन वी डिफाइन द रिफ्रैक्शन? Once the light ray is incident on one transparent surface or separating surface between the two transparent medium, then it's entering into the second medium, then it's moved towards or away to the normal, then this physical phenomenon is known as the refraction of the light. बहुत पुरानी फिजिकल फिनोमेना, आप लोग बच्चे मतलब छोटे छोटे थे 4, 5, 10 साल के, तब से आपको मालूम है ये सब चीज, आपको भी सिखाया गया था. अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पानी लिया जाए, ग्लास के अंदर, देन आफ्टर एक पेंसिल या पेन उसके अंदर रख देंगे ऐसे, तो आपको ये पेन एकदम से सीधी लगेगी. बट इफ यू टिल्ट इट लाइक दिस, तो क्या होगा?
तो जो सरफेस पानी और हवा दोनों को अलग करती है, वहां से ये पेन आपको थोड़ा बहुत टेढ़ा लगेगा, टूटा हुआ लगेगा. दिस फिजिकल फिनोमिना इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. सेम वे अगर पानी के ग्लास के अंदर, पानी की बकेट के अंदर अगर नेकेड पानी नदी में है या कहीं पे भी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर पत्थर है, कोई कॉइन है, तो अंदर पड़ा हुआ है, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत ऊपर है, राइट. उससे भी उल्टा अगर आप पानी में हो और बाहर की कोई चीज देखोगे तो जहां पर है वहां से दूर लगेगी. पानी के अंदर की चीज बाहर से देखोगे तो थोड़ा ऊपर है, ऐसा फील करोगे आप लोग. All these are nothing but what? All these are nothing but the refraction of the light. आ गई बात समझ में? Clear? This PQ is called the incident ray and this QR is called the refracted ray. This is the incident ray and this is the refracted ray. So by this way we can define the phenomenon of the refraction. आ गई बात समझ में? अभी इसके साथ में जुड़े हुए दो रूल्स समझाने हैं. जैसे रिफ्लेक्शन के लिए दो रूल थे. क्या रूल थे आपको मालूम है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम मीडियम. मतलब एक ही प्लेन के अंदर है. देन आफ्टर दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दोनों एंगल सेम है. आई बात समझ में? देन आफ्टर इसके लिए दो लॉ बता देते हैं. सी, this is the incident ray, this is the normal drawn to the surface, and this is the refracted ray. All are in the single plane. सभी एक ही प्लेन के अंदर है. आई बात समझ? दूसरी बात, the ratio of the sign of the incident ray and refracted ray is constant, and this constant is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium, and this is called the Snell's law. Right? लिखते क्या है? देखो, sin I upon sin R, it is equal to, you can say that, refractive index of medium 2 with respect to medium 1. दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, ये रेशियो, एंड दिस इज कांस्टेंट. सो देयरफॉर यू कैन से दैट sin I upon sin R, इट इज इक्वल टू n. नॉर्मली वी आर रिप्रेजेंटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद n. कौन से मीडियम का है बच्चों? सेकेंड. सो आई राइट हियर 2. किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के. सो इट इज n/1. सो दिस इज द रेशियो. आई बात समझ में? कोई तकलीफ है आपको? नहीं ना? बस ऐसे आपको यहां से डिफाइन करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. क्लियर? कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, है ना? फाइन. ये क्लियर हो गया अभी. नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट दी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विद द सेम. रिफ्लेक्शन भी दिखाना है, रिफ्रैक्शन भी दिखाना है. तो यहां से कई बार ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों कि ये रे इंसिडेंट हुआ तो कई बार यहां से ही लाइट रे रिफ्लेक्ट हो सकता है. तो ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट? लेकिन रेयरली पॉसिबल है. बहुत ज्यादा इतना नहीं होता बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो नहीं होता है रिफ्लेक्शन, राइट? देन आफ्टर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है? रेयर टू डेंसर. और ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर में क्या होता है? रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए क्या होता है वो अभी हमको समझना है. नाउ सपोज सी, हमारे पास दो मीडियम है. दिस इज द ऑप्टिकली यू कैन से डेंसर मीडियम, राइट? एंड दिस वन इज optically you can say that rarer medium. Okay, optically नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. denser medium and rarer medium. कंपैरिजन करके एग्जांपल के साथ में बताऊं तो हवा रेयर मीडियम है,
ग्लास नीचे है, ये ग्लास है और ये हवा है. So here you consider two mediums like this. This is nothing but the air and this is nothing but the glass. ये glass. So air is the rarer medium and glass is the denser medium. आ गई बात समझ में? पानी के साथ में ग्लास लोगे तो भी पानी, water is the rarer medium and glass is the denser medium. You can also take air with the water. Water is the denser and air is the rarer medium. आई बात समझ? बस ऐसे आपको यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये करते हैं बच्चों, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. ना अभी हो क्या रहा है, जैसे यहां पर बताया था वैसे ही यहां पर होगा. दिस इज नथिंग बट द इंसिडेंट रे. सो हियर दिस इज एम क्यू एन. दिस पी क्यू इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Now this ray is refracted and move like this or travel like this, and this is R. In the case of the ray which move from optically rarer to the optically denser medium, the refractive index n21 must be greater than 1. If the ray is traveling from optically rarer medium to optically denser medium, then the refractive index of the second medium is more with compared to the first medium. You can also write this one. The first medium with the refractive index n1 and second medium with the refractive index n2. These are the absolute refractive index of the material. Absolute का मतलब खुद के कंपैरिजन में, और कंपैरिजन करनी है तो भी कैसे, कोई एक ऐसा मीडियम जिसमें कहीं पे भी कुछ चेंज ना हो. बताते हैं कैसे, वो भी समझाएंगे आपको, आगे देखते हैं. नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस वन. तो अगर ऐसा है तो ये स्नेल फ्लो यूज करो. तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू n21. बट यू नो वेरी वेल दिस n21 इज ग्रेटर देन 1. सो n21 की जगह पर ये रखेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर. इसका मतलब यह हुआ कि आई इज ग्रेटर देन आर. बिकॉज आपको मालूम है ना कि साइन के लिए अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये एंगल 0 है, साइन 0 0. जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा बच्चों, साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा. सो यहां पर साइन आई ग्रेटर देन साइन आर है, उसका मतलब आई इज ग्रेटर देन आर होना ही चाहिए, राइट. सो इट इज आई ग्रेटर देन आर. तो यहां पर आई ग्रेटर देन आर होता है, मतलब हुआ दिस वन इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड दिस वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. बच्चों अगर उल्टा होता है तो क्या होगा, उल्टा मतलब अगर ये मीडियम डेंसर हुआ और ये मीडियम रेयर हुआ तो क्या होगा, तो वो भी समझते हैं बच्चों. Suppose this above one is the optically denser medium and this one is optically rarer medium, right? तो क्या होगा बच्चों, होगा ये my dear friends कि अगर यहां से एक रे ऐसे इंसिडेंट हुआ तो ये रे यहां से जाएगा ऐसे. See the angle this one I and see the angle this one R. This one is nothing but M Q N and this is P Q R. This is the basically path of the ray on which it gets traveled. बहुत सारे सम्स में ये कंसेप्ट भी आएगा और ये कंसेप्ट भी आएगा. सम्स है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर भी और इलस्ट्रेशंस के अंदर भी. Now, in this case, what happened, my dear friends? इससे बिल्कुल उल्टा होगा. उल्टा मतलब समझते हो ना? उल्टा मतलब ये हो रहा है कि n21 की जगह पर n21 is less than 1. अगर n21 less than 1 है तो n21 तो ये है. So you can also write that sin I upon sin R is less than 1. अगर ऐसी बात हुई तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि साइन आई इज लेस देन साइन आर. ऐसा होता है. अगर ऐसा होता है यहां के जैसा तो आप ये भी लिख सकते हो कि आई इज लेस देन आर.
आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, दैट्स इट। सो कंक्लूजन क्या हुआ प्यारे बच्चों? सुन लो अच्छे से। If the ray is traveled from, or if the ray is just passed from optically rarer to the denser medium, then the angle of incidence is greater than the angle of refraction. Ulta. If the ray is traveled from optically denser medium to the optically rarer medium, then angle of incidence is less with compared to the angle of refraction. एकदम से क्लियर कट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब रे डायग्राम के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होमवर्क में ये भेज देते हैं, अभी मुझे समझाओ कि ये क्या है, इसके लिए मैंने कितना बोला आपको, कितना समझाया, वो सब आपकी रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है। बच्चों, लिखने के मार्क्स मिलते हैं, पढ़ने के नहीं मिलते हैं। पढ़ने के आप लर्न कर सकते हो, तैयार कर सकते हो लिखने के लिए, लेकिन अगर ऐसा लिखोगे तो क्या होगा? यू वोंट बिलीव। एक बिल्कुल फैक्ट, जो बात अभी रिसेंटली हुई है, वो मैं आपको बताऊं। 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चे का 80% मार्क्स था, 80%। राइट नाउ ये रिजल्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं। और 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट की बात करूं, इट इज गेटिंग ओनली 56%। समझो कि उसके 10th स्टैंडर्ड के 80% के साथ में ये सिर्फ 56% आए। कहां पे एडमिशन, कैसी कॉलेज में एडमिशन और कौन सी ब्रांच में एडमिशन, समझ सकते हो आप। आपका फ्यूचर आपके पास में जो रेक्टेंगल पड़ा हुआ है वो नहीं है। आपका फ्यूचर उसके बाद में जो आने वाला फ्यूचर है ना, अभी जो है उसके बाद में जो आने वाला फ्यूचर है, उसके लिए सोचो। अभी तो आप ये रेक्टेंगल जो गैजेट है ना, उसके अंदर इतना खो गए हो, इतना खो गए हो कि बच्चों कोई लिमिट नहीं है। सो प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दिस एंड डू वेरी हार्ड वर्क। अगर आप 80 के स्टूडेंट्स हो ना बच्चों, अच्छे से काम करते हो, हमारे हिसाब से काम करते हो, तो ये 80 की जगह पर 90, 95 तक पहुंचा सकते हैं हम लोग। लेकिन आप तैयार ही नहीं हो यहां से निकलने के लिए, आप यहां से निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए तकलीफ हो रही है। बाकी हम लोग बिल्कुल बेशक आपकी जो एग्जामिनेशंस है, आपकी प्रिपरेशन है, आपके मतलब पढ़ाने से, कुछ भी करने से हम लोग थकते नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ काम करना है बस। 24 आवर्स है बच्चों आपके पास। कितना घंटा रियल में बाय हार्ट काम करते हो देख लो। समझ में आ रहा है ना? बस तो फिर अगर कुछ फील हो रहा है आपको, कुछ अंदर दिल में कुछ फील हो रहा है, तो आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए आपका वर्क, क्योंकि मैं देख रहा हूं यू आर नॉट वॉचिंग द लेक्चर कंप्लीटली। आप लेक्चर भी पूरा नहीं देखते हो बच्चों। क्या बात हुई है, क्या मिलेगा आपको? राइट ना? आपका फ्यूचर आप बनाओगे, आप ही बना सकते हो और आपको ही बनाना पड़ेगा, बाकी कोई आपकी हेल्प के लिए आने वाला नहीं है। सो प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ब्राइट फ्यूचर। आप ध्यान रखिए आपका और आपके फ्यूचर का भी। अदरवाइज क्या होता है, मैंने दोनों पहलू बता दिया कि यहां से जाके फटीचर कॉलेज में एडमिशन लेना है, या यहां से जाके आप जो कॉलेज में बोलोगे एडमिशन लेना है। राइट? रिसेंटली हमारे बच्चे ऐसे भी है, ऐसे भी है। एक बच्चे का ऑल गुजरात 80,000 बच्चों में से 80,000 बच्चों में से रैंकिंग बताओ ना, तो 1 to 100 में भी है, 100 to 200 में भी है, 300 में भी है, 400 में भी है। मतलब समझो, वो बच्चे जहां पे फिंगर रखेंगे ना, उस कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता है। और सबसे बढ़िया बात मालूम है बच्चों, जिस कॉलेज में 2-2 लाख रुपया फीस है ना साल की, ट्यूशन फी वेवर के अंदर उन लोगों को 0 रुपीज में फॉर्म भरना है।
₹0, नथिंग, नो फी एट ऑल। धरमसी देसाई, धीरूभाई अंबानी, निर्मा, ये ऐसी कॉलेज है जहां पर उसको फ्री में पढ़ने का मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना मजा आएगा यार। लोग 2 लाख खर्च के 4 लाख खर्च करके पढ़ते हैं, वो बच्चा 0 फीस। समझो क्या वैल्यू है उसकी, राइट? तो आप थोड़ा काम नहीं, ज्यादा काम करिए। आई ना बात समझ में? ठीक है, ओके। तो ये सब समझा दिया। अभी थोड़ी बात और मैं समझाऊं कि ऑप्टिकली रेयर एंड डेंसर मीडियम के लिए हमारी जो इमेज है कि पानी की डेंसिटी से ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो डेंसिटी के साथ में ये नहीं देखना है। वो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पर उसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। The rarer and denser medium is nothing but the ratio of the velocity or speed of the light in the vacuum and the speed of the light in the medium. Right? ये दोनों का रेशियो लेना है, तभी उसमें से rarer and denser बन सकता है। Right? तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसके अंदर ऐसा कुछ है कि जैसे उसकी डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ये ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयर में कुछ उल्टा पुल्टा होता है, कुछ उल्टा पुल्टा है, राइट? तो पैराफिन एक नाम है, तो वो मतलब समझना है आपको, राइट? द डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी बोलोगे तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, टर्पेंटाइन की कम है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे ना, तो टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो वो हुआ ऑप्टिकली डेंसर और वो हुआ ऑप्टिकली रेयर। मतलब पानी रेयर और टर्पेंटाइन डेंसर, राइट? तो ऐसा कुछ समझने में आता है कि मास डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी के बाद रेयर एंड डेंसर की बात थोड़ी अलग होती है, करेक्ट? डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा जाए तो n इज इक्वल टू C अपॉन V है बच्चों। व्हाट इज C? C इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। व्हाट इज दिस V? V इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। So this one is nothing but speed of light in vacuum divided by speed of light in medium, right? ऐसे उसकी डेफिनेशन बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। यू नो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, उसके पास यूनिट नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो सकता है? सो यू कैन से द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन इज, यू कैन से m नॉट l नॉट t नॉट। ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? और एक बात आगे करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडिंग ऑन विच फैक्टर? So it is depending on mainly 3 factors. Number 1, the type of the medium. Type of the medium का मतलब क्या हुआ? Air, then after glass, then after water. ऐसे जितने भी mediums होते वो सब types of the medium. Second is important one. It is also depending on the temperature of the medium. Glass का temperature change करते हो, refractive index change हो जाएगा. And the third one, important one, you can say that wavelength of the light also. ग्लास तो सेम है, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है। सो ये बात भी आपको समझनी है कि कैसे काम करता है ये, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? नाउ सपोज मेरे पास ऐसे समझाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, absolute refractive index of the first medium is, you can say that Ny.
absolute refractive index of the second medium is n2. Then what can I say? If I want to write n21, then this n21 is equal to what? So it is nothing but n2 upon n1. If I want to write the same definition of the refractive index n21 with this velocity, then how can I write? This is the speed in the first medium and this is the speed in the second medium. So you can say that it is v1 by v2. Here what is v1? So here v1 is speed of light. Speed of light in medium 1. What is v2? It is the speed of light in medium 2. Right? ऐसी बात यहां से आपको मिल सकती है. Both are same, so you can also compare this one. So आप ये दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो. साथ में आप ऐसा भी जानते हो कि also you know that n21 it is equal to sin I upon sin r. आपको ये भी मालूम है. So this is equal to what? This is equal to n2 by n1. This is equal to v1 by v2. All are the definitions of the relative refractive index. ये एब्सोल्यूट हो गया और ये क्या हो गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. राइट? तो ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर हो गई ना बात? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. देन आफ्टर मैं ये फॉर्मूला से थोड़ा बहुत आगे चलता हूं. राइट? सी what is n21? just you say that it is v1 by v2. प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूं तो v2 by v1. अगर v1 by v2 लिखा तो n21 है, v2 by v1 लिखूंगा तो क्या हो सकता है? so just I write n21 it is equal to 1 upon n12. ये डेफिनेशन इसके साथ में कंपेयर करोगे तो यही लिख सकते हो. देख लो n12 is the reciprocal of n12. n21 is the reciprocal of the n12. अगर ये दोनों को साथ में ले लिया बच्चों तो क्या होगा? n21 into n12. This is nothing but 1. This is nothing but 1. है कि नहीं? ओके. और कुछ बात करते हैं हम लोग. जैसे मेरे पास n31 है. n31 मैंने लिखा है तो मुझे ये ऐसे लिखना पड़ेगा n32 इंटू n21. अब बोलोगे सर ये आया कैसे? डायरेक्ट लिख दिया आपने? नहीं 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 नहीं, इसका भी प्रूफ दे सकते हैं हम लोग. देखो n31 इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू n3 डिवाइडेड बाय n1. लिख सकते हैं ऐसे? ओके फाइन. नाउ सी n3 बाय n1 इंटू n2 अपॉन n2. एडजस्टमेंट कर लेते थोड़ा. सो इट इज n3 डिवाइडेड बाय n2 इंटू, ये n2 इधर आ गया, इंटू n2 बाय n1. देख लो ये हो गई बात. सो यू कैन से दैट इट इज n31 इट इज इक्वल टू n32 इंटू n21. ये सेम फॉर्मूला आप स्पीड से भी समझा सकते हो. ऐसे कितने भी आ जाए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. सपोज मेरे पास n51 है. राइट? n51. सो मैं लिखूंगा क्या? सो इट इज n5 डिवाइडेड बाय n1. लेकिन ऐसी सीरीज बनानी है तो मैं क्या करूंगा? सो इट इज n51 इट इज इक्वल टू n54 सॉरी इंटू n43 इंटू n32 n2. That's it. 5 4 4 3 3 2 2. So ऐसे आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा सकते हो. रिलेटिव का मतलब समझ में आ रहा है. एक की कंपैरिजन में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं. सो ऑल टुगेदर आज क्या किया हम लोगों ने? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट समझा है, डेफिनेशन समझाए, उसके दो लॉ बताया आपको. कौन सा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द प्लेन, and you can say that refracted ray are in the same plane. The ratio of sin I to sin R is constant and it is called refractive index of the second medium with compared to the first medium. हो गया.
देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया, जो पहले बताया साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड दी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का दूसरा फॉर्मूला आप समझते हो, वो याद करना पड़ेगा आपको। यहां से ये वाला फॉर्मूला बहुत सम्स में यूज करेंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं, यहां पर देख सकते हो, यू कैन से साइन आई बच्चों अपॉन साइन आर लिखेंगे, देन इट इज इक्वल टू n2 बाई n1 हो जाएगा, ये यहां पर जाएगा। सो n1 साइन आई इट इज इक्वल टू n2 साइन आर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ये बहुत जगह पर यूज करने वाले हैं हम लोग, सम्स में तो खास करके यूज करेंगे, इजंट इट। बस थोड़ा सा टॉपिक में चलाता हूं, लेकिन ऐसे समझना है आपको कि बस याद रह जाए। और मैंने एक बात बताई आपके बच्चों की, ये सब मैं जो लिख रहा हूं उसके साथ में बहुत सारा समझा रहा हूं, और ये सब कुछ आपकी रेफरेंस बुक में पड़ा हुआ है, तो उसमें से लर्न करना है, लिखना भी है ना।